Hello. So hello guys, am I audible? Yes, yes. Okay, so how is your winter camp going on? Any reviews? Speak up, guys. This is very informal. Let it be interactive session here. Okay, so guys, let's start today's session. Today's session is on computer vision and image processing. So first of all, we have shared the Google Colab of today's session in Slack. Please open that. We will follow along so that you can have better understanding. टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कॉपी टू ड्राइव होगा तो वो कर लेना क्योंकि फिर मतलब दिस इज प्रॉब्ली आज खत्म नहीं हो पाएगा तो घर मतलब बाद में तुम लोग कर सकते हो इट्स मोर लाइक अ ट्यूटोरियल खुद से भी कर सकते हो This is copy to drive button. Please copy it to drive and follow along in that copy only. So first of all, what is computer vision? So computer vision is a way to see what the image is showing us. Like we can see here, here's an image, and we can infer several meanings from this image. Like there are cars parked, or persons are walking. I doubt. Sorry. So here we can infer several meanings from this image, like the cars are parked and people are walking in front. So the computer vision is all about how computer will can extract meaning from these images. So in a computer we see image as a matrix in a matrix form. Images displayed in the matrix form like this. The image is divided into several parts, and each block is represented by a number displayed, and that number gives the color of that image. So first of all, image can be represented as 2D or 3D matrix. So for there are several color representation of an image like RGB, BGR, or grayscale. RGB is red, green, blue color scheme. So red color is in RGB format. The image is represented as a 3D matrix in which the first block is red, or is represented by red. The second is represented as green, and third as blue.
and each block of that matrix is known as pixel. We can see that here there are three boxes of colors, and each box is divided into several boxes, and each box contains a number which is from 0 to 55, and the intensity of the color is decided by this number. You can see here that it's in the first block it's like 253, 144. It's giving what is the percentage of red color in that, then what is the percentage of green, and what's the percentage of blue. So when all these three blocks combine, then we get a color representation in the image. Similarly, here's BGR. There are three channels, and first is blue, second is green, and third is red, and the color intensity is decided by that. In the grayscale, we see that in the grayscale, it's a 1D matrix. It's 2D matrix, and it only contains the number from 0 to 55, with 0 representing black and 255 representing the whiteness. So this is all about color scheme and how image is read in computer vision. So now we will start the coding part, how the dependencies are loaded and how we change the color scheme and texture of the image. It's जो difference है, that is basically पहले कौन सा आता है. So अगर तुम zero मतलब पहला चैनल अगर एक्सेस करोगे मैट्रिक्स का थ्रू जो भी अपने वो होते हैं इंडेक्सेस, तो उसमें पहला चैनल इन RGB वो R होगा, रेड होगा, BGR में वो ब्लू होगा. तो दैट इज अभी इसमें आगे मैं दिखाऊंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है. तो वो CV2 थोड़ा इलॉजिकल पार्ट है, तो वो देखेंगे. तो अभी कोडिंग जो हम लोग करेंगे अभी, उसमें हम लोग लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे बहुत सारे. तो लाइब्रेरीज बेसिकली होते हैं कलेक्शन ऑफ कोड्स which are all pointed towards a specific area. So NumPy basically is operations on matrices, right? और CV2 उसमें जितने भी कोड्स होते हैं वो कंप्यूटर विजन के होते हैं. तो अभी इन दोनों को मोस्टली यूज़ करेंगे, तो ठीक है, बट बाकी सारे भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, तो ठीक है. तो नेक्स्ट विल मूव इट ऑन टू दिस इज़ वेरी बेसिक. कहाँ मतलब इमेज मुझे अगर लेना है कहीं से, तो ये तो मैंने ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, बट म्यूट कर लो यार. तो गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो పండుకునేటప్పుడు కూడా అట్లనే ఇట్లా చేయి పెట్టమంట. ఒరిగేటప్పుడు అట్లనే ఒరుగుతా. ఇట్లా నువ్వు చేయి పెట్టి so right, so ये URL है, तो भी म्यूट कर सकते हैं हमको. Hello, Harish Prasad, please mute yourself. एक मिनट, I'll mute all and then मैं खुद को अनम्यूट कर लेता हूँ. हाँ, so यहाँ पे URL है, मैंने इससे इंपोर्ट किया इमेज, ठीक है. दिस इज अच्छा, वन थिंग मैं पहले बताता हूँ कि दिस सेशन इज, तुम लोग को कुछ कोडिंग करना नहीं पड़ेगा. एसेंशियली तुम लोग खाली ट्विक्स करोगे, थोड़ा सा नंबर इधर आगे पीछे करोगे, इफेक्ट्स देखोगे इमेजेस पे, तो कोई कोडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं है. माय मेन गोल इज कि तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और हल्का फुल्का आइडिया हो जाए. सीखोगे तुम लोग प्रॉब्लम मैट्रिक्स, मतलब जब प्रोजेक्ट्स करोगे उसी में तुम लोग को समझ में आएगा. तो यहाँ पे खाली इंट्रोडक्शन है. सो सबसे पहले मैंने URL डाल मतलब देख लिया, नोट कर लिया, एंड देन मैंने इस थ्रू दिस लाइन मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया. नाउ
यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मैं ये जो इमेज मैंने इंपोर्ट किया है इसको मैं अगर डिस्प्ले करने की कोशिश करूं तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड। एक हाँ, इट्स नॉट व्हाट इज दिस, राइट? तो ये इसलिए होता है कि मैंने डायरेक्टली मैंने इंपोर्ट किया, मैंने डिस्प्ले किया उसको, तो उससे ये हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि फिर वही बीजीआर और आरजीबी पे बात आ जाती है। CV2 बिकॉज ऑफ सम हिस्टोरिकल रीजंस वो जो इमेज इंपोर्ट करता है उसको स्टोर करता है बीजीआर फॉर्म में, लेकिन कल्चरली अभी प्रेजेंटली जितने भी इमेजेस स्टोर्ड होते हैं वो आरजीबी में होते हैं। तो ये CV थोड़ा सा मतलब पहले जब शुरू हुआ था इमेज प्रोसेसिंग और इसका, तो फिर बीजीआर उस समय बहुत यूज होता था, तो उस समय इस हिसाब से करना शुरू किया, लेकिन फिर चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन ये लोग चेंज नहीं हुए, तो वो ही रह गया। तो हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए, वी यूज एन इनबिल्ट फंक्शन विच इज कन्वर्ट कलर, राइट? तो मैं बोल रहा था कि कंप्यूटर CV इज ओपन CV इज ए लाइब्रेरी, राइट? तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे कोड्स हैं। तो वन ऑफ दोस कोड्स इज CVT कलर, विच बेसिकली तुम्हारा कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम BGR टू RGB, राइट? नाउ अगर मैंने कर दिया उसको कन्वर्ट, आई सेव्ड इट इन एज अनदर वेरिएबल image2। अब अगर मैं इसको करूं डिस्प्ले, आई शुड गेट द राइट रिजल्ट्स। देखते हैं। ओके, सो ग्रेट। खैर तुम लोग को अगर किसी को पता ये कौन है, तो नहीं भी पता तो ठीक है, मतलब फेमस गिटारिस्ट। तो ये क्या है ना, ये कलर इमेजेस का तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बट बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, तो फिर इट्स बेटर इफ वी डू एवरीथिंग ऑन ग्रे स्केल। मतलब बेसिकली एक चैनल होगा हम लोग के पास, तो उसमें चीज़ें करनी आसान होंगी, तो ज़्यादा स्मूथ होगा, नॉट नो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। तो मतलब हम लोग फिर ग्रे स्केल पे काम करेंगे। तो देर इज अनदर फंक्शन, मतलब सेम फंक्शन में एक दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा वो है मोड विच इज कन्वर्ट फ्रॉम BGR टू ग्रे स्केल। तो image3 will be a grayscale image, and grayscale image पाने के तो 2-3 मेन तरीके होते हैं। अच्छा रुको, मैंने इसको चला दिया, सॉरी। तो एक तो होता है कि यू कैन take all the 3 channels, divide everything by 3 and then add, that is one way। but ये वाला सेम ही चीज करता है, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता है, बट हल्का वेट्स डिफरेंट होता है। तो कोई डाउट्स है क्या अभी तक कुछ है तो बताओ, चैट में लिख दो। मेरे को चैट दिख नहीं रहा है। बोल सकते हो तो बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। कोई डाउट? हेलो। हाँ हाँ बोलो। अभी अभी एंड में जो आपने समझाया, मतलब ग्रे स्केल वाला, वो चीज समझ नहीं आई। हाँ, तो ग्रे स्केल तो 3 चैनल्स होते हैं ना, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है? तो तीनों में 0 से 255 एक पिक्सल, मतलब एक पोजीशन पे 0 से 255 कोई वैल्यू होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस पूरे इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दूँ, ग्रे स्केल मतलब एवरीथिंग इज ग्रे, देयर इज नो कलर, ठीक है? एंड दैट इज वन सिंगल चैनल, राइट? तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि जो तीनों जो चैनल्स है, किसी एक पिक्सल पे 3 वैल्यूज होंगे, किसी एक पोजीशन पे, एक रेड का होगा, एक ब्लू का होगा और एक ग्रीन का होगा, ठीक है? तो एक चीज उन तीनों को यूनिफाई करने का एक तरीका हुआ कि तीनों को 3 से डिवाइड कर दो और ऐड कर दो, क्योंकि 3 है, 3 से डिवाइड करो, ऐड करो, ठीक है? तो वो काफी लोग करते हैं और वो काफी जगह यूज होता भी है, मतलब प्रॉपर कोडिंग में। बट ये जो फंक्शन है वो हल्का वेट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करता है। तो 0.228 इंटू रेड पिक्सल प्लस 0.56 इंटू कुछ, आई डोंट नो द रीजन, कुछ होगा उनका मैथमेटिकल रीजन, बट ऐसा होता है। तो ठीक है ना, क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर हम दूसरे वे से कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं? किसमें? ये जो आप डिवाइड वाला मेथड बता रहे हैं उससे कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं एक बार ग्रे में? कर सकता हो, बट ठीक है, मतलब सेशन लंबा चला जाएगा, मतलब इट्स नॉट सिंपल है। मतलब पहला चैनल उठाओ, 3 से डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, देखना है क्या सही में?
देखो मैं बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो इमेज 2 है, ठीक है, सॉरी इमेज 2, उसका 0 चैनल बाई 3 होपफुली चल जाना चाहिए, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बट ठीक है, नहीं होनी चाहिए। लेट अस सी। एक सेकेंड। So I don't know what is happening इधर, मैंने ट्राई नहीं किया है इधर, बट कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। मतलब आई विल सी बाद में, और अपडेटेड, ठीक है, डाउट है मैं नोटबुक में ऐड कर दूंगा, तो तुम लोग को देख लोगे, तो ठीक है, आई विल मूव अहेड। तो इमेज 3 फाइनली हम लोग जिस इमेज पे काम करेंगे वो होगा इस इमेज पे। तो आप, बिकॉज सेशन इज इंटरैक्टिव, तो फिर तुम लोग अपनी चॉइस के हिसाब से भी इमेज चूज कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसमें यहाँ पर आप इस इमेज की जगह कुछ और ऐड कर लो अगर तुम लोग चाहते हो, और अगर नहीं चाहते हो कि कुछ दूसरे इमेज पे काम नहीं करना, तो देन वी कैन मूव ऑन, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, आई गिव यू 2-3 मिनट्स, और एक 5-6 बार डन लिख दोगे तो फिर आई विल वेट। हाँ ठीक है, 2-3 मिनट्स आई वेट। और कोई डाउट है क्या किसी को? वो बाई 3 वाला मैं ऐड कर दूंगा, उसकी चिंता नहीं है, उसमें कुछ नॉट एग्जैक्टली किसी भी मैट्रिक्स को अगर तो जो इमेज वो आपने 3 डायमेंशन, तो जो आपने 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स दिखाई थी आरजीबी की, उसमें जो हर एक बॉक्स है वो हर एक पिक्सल को डिफाइन कर रहा है। ये ना, हाँ तो इसमें एक पिक्सल एक पोजीशन, ठीक है, उस पे 3 वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो फिर तो ये दैट जो इज, मैट्रिक्स होगी, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो काफी ज्यादा होंगे। हाँ बहुत सारे होते हैं बिल्कुल। अगर तुम, मतलब इसका ये जो इमेज है इसका शेप मैं बता देता हूँ, तो तुम देख लो, एक आइडिया हो जाएगा। रुको, फोर हंड्रेड फाइव, 606, 616, 405 रोज एंड 616 कॉलम्स। तो इतने, ये ग्रे स्केल के लिए था। सो मल्टीप्लाई कर दो उनको, तो इतने वैल्यूज हैं, इतने सारे पिक्सल्स हैं, और इनटू 3 कर दोगे फॉर कलर इमेजेस, राइट? तो ऐसे, ठीक है। अगर, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने अपने हिसाब से इमेज चूज कर लिया है, तो आई विल मूव अहेड, मैं उसी पे रखूंगा, तो अच्छा इमेज है वो। तो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, राइट? हाँ, सो ये इमेज 2 वाज कलर इमेज, तो उसको ब्रेक करके दिखाया इसमें कि ब्रेक करोगे तो यू विल गेट 3। एक्चुअली इसको ऐड करके अगर डिस्प्ले करने की कोशिश करें तो मे बी दैट विल वर्क, आई डोंट नो। एक एक फंक्शन होता है मर्ज फंक्शन, जो कि हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली फॉर ये, देखते हैं, ये शायद काम कर जाए, पता नहीं। पता नहीं, मैंने भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, सो ये
जरूरत पड़ती नहीं है इसकी। पहले ये देख लो, ये खैर ब्लू इमेज, ब्लू चैनल्स का डिस्प्ले हुआ है विच इज ग्रे इमेज, तो यू प्रॉब्ली यूर थिंकिंग कि वो ग्रे की, ओ भाई पता नहीं क्या है जो भी है, तो देखना पड़ेगा उसका। तो वो पूरा ग्रे इसलिए था क्योंकि वो जो वैल्यूज थे वो 0 से 255 वाले ही थे सब, ठीक है। और सिंगल चैनल मतलब ग्रे स्केल चैनल, ठीक है। और जब 3 चैनल को कंबाइन करना चाहो ना, तो फिर तुम अगर डायरेक्टली मैट्रिक्स बना के उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करोगे तो दैट विल नॉट वर्क। यू विल हैव टू यूज CV2 मर्ज फंक्शन, एंड वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड हो जाता है, तो विल नॉट गो इनटू दैट। अच्छा, इस सेशन में विल डू 2 इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक तो सबसे पहला होगा कि हम लोग नॉइज ऐड करेंगे। नॉइज खुद से ऐड करते नहीं है, मतलब सेन इंसान लोग नहीं करते, वो लोग नॉइज रिमूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं पहले खुद मैनुअली नॉइज ऐड करूंगा और फिर मैं हटाने की कोशिश करूंगा उसको, ठीक है। ये पहला ये इमेज एनहांसमेंट होता है। और नेक्स्ट अगर जब ये हो जाएगा हम लोग का टाइम में पहले, तो उसके बाद हम लोग करेंगे एज डिटेक्शन, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो ये पता नहीं क्या था, भयानक है बहुत, तो छोड़ो, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो नॉइस जो होता है ना, नॉइस काफी रीजंस की वजह से आ सकता है। एक तो होता है मतलब प्रॉब्लम, तुम अगर कैमरा से खींच रहे हो तो फिर ठीक है, मे बी धूल है, मिट्टी है, और या अगर तुम कोई सिग्नल ले रहे हो और सेंसर से ले रहे हो तो सेंसर का मतलब हीट हो जाता है वो, तो उसमें फिर डेटा में थोड़ा सा वेरिएशंस आने लगते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि नॉइज आ सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे काम, अच्छा नॉइज हम लोग को आइडिया नहीं होता, लाइक वी डोंट नो व्हाट द नॉइज इज, राइट। अगर नॉइज का एग्जैक्ट वैल्यू पता होता तो फिर वो नॉइज नहीं होता। तो अगर हम लोग को नॉइज पता होता तो सीधा जाके रिमूव कर दो इंडेक्स बाय इंडेक्स, है ना। दैट वी कैन डू, राइट। बट वी कैन क्रिएट मॉडल्स फॉर नॉइजेस। तो 2-3 मॉडल्स होते हैं। तो एक तो वो गॉसियन नॉइज, मैं बताऊंगा ये क्या है। एक होता है सॉल्ट एंड पेपर नॉइज, कि ब्लैक डॉट्स व्हाइट डॉट्स ऐड करते जाओ। ब्लैक डॉट व्हाइट डॉट्स इन कंप्यूटर मतलब इमेज प्रोसेसिंग वुड मीन रैंडम पिक्सल्स पे 0 वैल्यू डाल दो, ओरिजिनल वैल्यू हटा के। रैंडम जगह पे ओरिजिनल वैल्यू हटा के 255 डाल दो, तो ब्लैक एंड व्हाइट हल्का हल्का सा वो दिखाई देगा। तो दैट इज, और ये पॉइसन नॉइज, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट है कुछ है। तो वी नॉट रियली कंसर्न्ड विद किस टाइप का नॉइज, ठीक है। नॉइज किस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो गॉसियन नॉइज इज नॉइज, एक चीज हम लोग नॉइज के बारे में एज्यूम करते हैं कि उसका जो मीन होगा ना, दैट शुड बी 0। मतलब बेसिकली मीन्स कि अगर मैं सब कुछ ऐड करूं सारे नॉइज को, इमेज में जितना भी नॉइज है, तो वो 0 हो जाएगा। ये असम्पशन स्लाइटली अनरीजनेबल लगता है, लेकिन अगर ठीक सोचो तो तुम लोग का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर था, ठीक है, उसमें आई डोंट रिमेम्बर, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, बट मे बी ऐसा कुछ था कि गैस होता है, मतलब आधे गैस इस तरफ मूव कर रहे होते हैं, आधे गैस इस तरफ मूव कर रहे होते हैं रैंडम, और तो फिर ओवरऑल वेलोसिटी 0 हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज रैंडम होता है वो। अगर रैंडम नहीं होता तो नहीं ऐसा कह सकते थे, लेकिन बिकॉज इट इज रैंडम वी कैन से कि ओवरऑल वेलोसिटी, सबका वेलोसिटी अगर ऐड करो दैट इज 0। यहाँ पे भी वो सेम चीज है कि अगर हम लोग में सारे पिक्सल सारे नॉइज उठाऊं छोटे छोटे, तो कुछ नेगेटिव नॉइज होंगे, कुछ पॉजिटिव नॉइज होंगे, ओवरऑल 0 हो जाएगा या फिर क्लोज टू 0। तो ये एज्यूम करके चलते हैं। तो गॉसियन नॉइज पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग किसी भी टाइप का नॉइज यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मतलब एंड रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गॉसियन नॉइज का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम लोग गॉसियन फिल्टर यूज करेंगे, जो कि उससे पहले बताओ किसी को कोई डाउट है कि नहीं है अभी तक, मतलब चिल है, कोई कोई कुछ भी पूछ सकते हो सकता है मैं ना ही बता पाऊँ, बट पूछ लो, कुछ है किसी को? नहीं है, ओके, कोई जज वज नहीं करेगा, चले। ठीक है, मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसा होता है कि तो गॉसियन नॉइज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। तो सारे अगर मैं नॉइज उठाऊं ना,
सारे पिक्सेल्स, सपोज आई नो एवरी नॉइज एंड एवरीथिंग, ठीक है, और मैं उसको प्लॉट करूँ, मतलब यहाँ पे यहाँ पे कोई सपोज 5 है, तो यहाँ पे 5 वैल्यू का कितना नॉइज है, ठीक है, तो 5 वैल्यू का नॉइज है, ये रिप्रेजेंट करता है 5 वैल्यू का नॉइज, और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। इस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे मत जाना अभी, वो कुछ और है। तो ये सपोज फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है ये वाला, कि 5 वैल्यू का नॉइज जो है उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितने बार वो अकर कर रहा है इमेज में। तो वो तुम देखोगे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, फ्रीक्वेंसी इधर होता है और ये वैल्यू इधर होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है, ये वाला सब ग्राफ होता है। और ये ग्राफ तुम में से कुछ लोगों ने प्रॉब्ली देखा होगा, दिस इज कॉल्ड अ बेल कर्व और अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हम लोग के लिए बहुत सही है, मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम्स कोर्स भी यही फॉलो करता है कर्व, ऑफलाइन सेमेस्टर में। ऑनलाइन सेमेस्टर में कुछ और हो जाता है थोड़ा सा, तो जब ये हल्का सा ऐसे शिफ्ट हो जाता है ना, मतलब थोड़ा वियर्ड हो जाता है शेप इसका, तो प्रोफेसर्स बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम लोग के एक प्रॉफ ने हम लोग को दिखाया था एक्चुअली कि तुम ऐसे होना चाहिए, लेकिन है ऐसे, तो हम लोग पैटर्न चेंज कर रहे हैं एग्जाम्स का। तो जो भी है, तो ये होता है। और अगर तुम किसी एक क्लास में हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, किस हाइट पे कितने फ्रीक्वेंसी है, दैट विल आल्सो फॉलो दिस कर्व, एंड दिस वोंट शिफ्ट, क्योंकि हाइट में कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, तो दिस दैट विल स्टे द सेम। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज, और नेचर में और काफी जगह पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो ठीक है, नेक्स्ट विल मूव टू, ये खाली मैंने कोड लिखा है टू ऐड नॉइस, और कुछ नहीं है, रैंडम है। मैं numpy का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है रैंडम, जिसमें कि वो उसी डिस्ट्रीब्यूशन का नॉइस कुछ भी रैंडम कहीं से, आई डोंट नो एग्जैक्ट एल्गोरिथम क्या होता है, बट ठीक है, वो कर देता है ऐसा कुछ। तो और अभी किसी को डाउट है अभी तक, किसी को मतलब गॉस वॉस में कुछ डाउट है? ठीक है, नहीं। तो ये जो है ना, ये जो लिखा है मैंने, ये वाला फॉर्मूला मैंने उधर यूज किया है, ठीक है। तो इसमें, अच्छा मैंने यूज नहीं किया, मैंने बाद में यूज किया, सॉरी। तो ये है गॉसियन नॉइज, आगे देखोगे कर्नल में जब बनाऊंगा तो उसमें मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया। तो दिस इज, मैंने इसको हटा, ठीक है, मैंने फंक्शन डिफाइन किया नॉइज ऐड करने के लिए, गॉसियन नॉइज ऐड करने के लिए, और मैंने इस फंक्शन में अपना इमेज डाला जो ग्रे स्केल इमेज था, सॉरी जो कलर इमेज था, उसको बाद में ग्रे स्केल कर देंगे। तो जो कलर इमेज था, और मैंने बोल दिया कि गॉस नॉइज है, तो मतलब सॉर्ट ऑफ तुम लोग को बताने के लिए। और फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया ग्रे स्केल में, तो जो मैंने नॉइज ऐड किया पहले इमेज में, फिर मैंने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखते हैं क्या आता है, मतलब फाइनल आउटपुट, राइट। तो अच्छा, वो ये इग्नोर करो। तो चले, तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल पिक्चर, और ये मैंने नॉइज ऐड किया है इधर, राइट। कितना कूल है। तो ये होता है। फिर और इसको इग्नोर मारो, ये मैंने अपने लिए डिफाइन किया है। तो नॉइज का क्या है कि जो कंप्यूटर विजन, इमेज एनहांसमेंट, इमेज प्रोसेसिंग एसेंशियली वही होता है। तुम जब कैमरा से फोटो लेते हो तो तुम्हारा सारा इमेज बहुत अच्छा दिखाई देता है, राइट, तुम यही इमेज देखते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कैमरा, आजकल डिजिटल कैमरास होते हैं, तो कैमरा फोटो लेता है, वो सारे ऑपरेशंस करता है एंड देन वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो वो जितने भी ये सारे काम होते हैं ना, ये सब कैमरास में यूज होते हैं, मतलब तुम लोग बीच का प्रोसेस नहीं देखते हो। तो ये, और एनीबॉडी हैज एनी डाउट टिल नाउ? वो उधर रिशेप जो किया है उसका क्या, उससे क्या हो रहा है? गॉस डॉट रिशेप जो लिखा हुआ, हाँ इसमें, गॉस डॉट रिशेप, हाँ ओ इससे क्या? अच्छा, आई थिंक वो यही है कि रो कॉलम जो तुमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि गॉस जो होता है ना, वो एक एरे ऑफ नंबर्स देता है, ठीक है, रैंडम एरे ऑफ नंबर्स विच शुड फॉलो गॉसियन
डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको मैं ओरिजिनल इमेज में ऐड करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं इमेज का शेप दे दूँ, है ना, तभी मैं ऐड कर पाऊंगा हर पिक्सल में। तो ये यहाँ पे मैंने ये रो, कॉलम और ch दिया हुआ है। रीशेप में जो ये 3 वेरिएबल्स हैं, ये मैंने इमेज का शेप लिया है। तो मतलब मैंने पूरा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को रीशेप कर दिया इसमें, तो वो नंबर्स अपने आप अरेंज हो गए। तो अब फिर मैं ऐड कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो अभी हाँ ठीक है। लेक्चर चल रहा है तो ठीक है, राइट। तो हमारे इमेज में नॉइस ऐड हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे देखना कि इस इमेज को हम लोग इस नॉइस को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे। तुम लोग कोड वोड चला रहे हो ना, मतलब साथ साथ में वो करते रहो, क्योंकि ऐसा है कि अगर पहले का कोड नहीं रन करोगे ना तो फिर तुम्हारा वेरिएबल स्टोर नहीं होगा, और आगे जाके जब मैं बोलूंगा कुछ करने के लिए तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा, इशू हो जाएगा। तो आगे कॉन्वोल्यूशन एंड फिल्टर, ठीक है। सो ये होता है बेसिक, होता है बेसिस है, दिस इज द बेसिस फॉर इमेज प्रोसेसिंग, अ लॉट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि दिस इज, ये हम लोग का x1 जो दिया हुआ है ये पूरा हम लोग का सोर्स इमेज होता है, जो कि मेरे लिए होगा ये अभी मैं अगर इस पे पूरा इमेज एनहांसमेंट ऑपरेशंस करूंगा तो ये है मेरे लिए सोर्स इमेज। तो ये हम लोग का सोर्स इमेज होगा, ठीक है। और ये होगा, इसको कहते हैं मास्क या कर्नल, ठीक है, या फिल्टर। तो अभी क्या करेंगे, इसको इस ऑपरेशन को कहते हैं कोरिलेशन। इसमें क्या करेंगे, इस मास्क को है नाउ, मास्क है वर्ड, तो फिर समझ रहे होगे कि हम लोग इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तो करेंगे ओवरलैप, फिर क्या होगा, वो सारे एक दूसरे डॉट प्रोडक्ट्स होंगे बहुत सारे। तो x नॉट विल मल्टीप्लाई विद w नॉट, x1 विल मल्टीप्लाई विद w1, x2 w2, x4 w3, x5 w4, जो ये सारे मल्टीप्लाई होंगे और एक डॉट प्रोडक्ट का एक वो आएगा, क्या बोलते हैं, वैल्यू, we will place that at x5, ठीक है। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये इधर गया, ओवरलैप किया, डॉट प्रोडक्ट हुआ, इसका एक फाइनल वैल्यू आया जो कि y0 है। तो और फिर उसके बाद तो इसके लिए आ गया, x5 के लिए आ गया। अब उसके बाद ये मैट्रिक्स थोड़ा राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, एक राइट शिफ्ट होगा, फिर x6 में एक नया वैल्यू आएगा y1, फिर 9 में ऐसे आएगा। तो इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि हम लोग का शुरू हुआ था 4x4 मैट्रिक्स से, बीच में आया 3x3 मैट्रिक्स, कुछ वो ऑपरेशन, एंड नाउ वी हैव 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस, राइट। तो ये इसको ठीक करने के लिए पहले प्रॉब्लम ये है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम x4 पे रख नहीं सकते उस मास्क को, क्योंकि लेफ्ट में कुछ है नहीं। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे w0, w3, w6 को। तो उस चीज को डील करने के लिए ना, वी एड अ लेयर ऑफ जीरोस, दैट इज कॉल्ड पैडिंग, ठीक है। वी एड अ लेयर ऑफ जीरोस एंड उसके बाद वी पुट इट देयर एंड इट मल्टीप्लाइज, और तो यू कंजर्व द साइज, यू कंजर्व अ बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उसको कहते हैं पैडिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम इसी कर्नल को फ्लिप करोगे अबाउट y एक्सिस एंड देन बाय अबाउट x एक्सिस, और फिर उसको ओवरलैप करके डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। किसी को आइडिया है कहाँ यूज होता है? बोल दो, मतलब ठीक है, कोई जज नहीं कर रहा है। किसी को कुछ भी आइडिया है कहाँ पे यूज होता है? बहुत बहुत फेमस है। इनक्रिप्ट करने में। तो पता नहीं नहीं मेरे को तो नहीं आइडिया है, बट होता होगा। बट एक फेमस है कि न्यूरल नेटवर्क्स में, CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, मैंने उस पर भी काम किया और इस पर भी काम किया है, और दोनों में ये चीज अप्लाई होता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का बेसिस होता है कॉन्वोल्यूशन। यहाँ ये पूरा उठा के इस पे लगाते हैं और वो करते हैं। इंक्रिप्शन प्रॉबेबली होता होगा, इंक्रिप्शन में बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं, तो ये भी होता होगा कहीं, श्योर। तो दैट्स अ वेरी हेवी टॉपिक, इंक्रिप्शन, ठीक है। तो
हाँ ये जिफ है, तो देख लो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो मिडल वाला है ना वहीं पे वैल्यू प्लेस हो रहा है, ठीक है। बस यही था, तो देख लो जिफ 2-3 बार इसको देखने का मन। और ये है कोड कॉन्वल्व का। ये इसमें ऐसा है कि ये कॉन्वोल्यूशन का कोड है, और कोरिलेशन के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वो ऐड कर दिया। सो सपोज हाँ, सो ऐसा होता है, ये एक देख लो कोडिंग का क्या होता है। तो अगर पाइथन में कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसके अंदर तुम कुछ पैरामीटर्स देते हो, ठीक है। तो इमेज है, ये मैं यहाँ पे अपना एरे दे दूंगा, कर्नल है मैं अपना मास्क दे दूंगा उधर। पैडिंग इज इक्वल टू 0, मतलब जब मैंने 0 दिया ना, किसी चीज का मैंने वैल्यू अंदर ही डिफाइन कर दिया, इसका मतलब उसका डिफॉल्ट वैल्यू है। अनलेस कि जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और स्पेसिफिकली नहीं लिखता कि पैडिंग इज इक्वल टू 3, तब तक इसमें पैडिंग का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। और अंदर में जहां पे भी वो वेरिएबल यूज होता है वहां पे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया पैडिंग इज इक्वल टू 3, तो फिर पैडिंग का यहाँ पे फिर 3 यूज होगा। तो ये है, इस कोड में ज्यादा मत घुसना, दिस इज स्लाइटली ठीक है इंटेंसिव। तो जो भी है एसेंशियली क्या करता है कि यहाँ से तुमको कर्नल का शेप मिला, यहाँ से तुमको इमेज का शेप मिला, ठीक है। और ये हुआ तुम्हारा आउटपुट का शेप ना। आउटपुट का शेप डिफरेंट होगा, राइट। ये 5x5 मैट्रिक्स था लेकिन 3x3 का आउटपुट है। ये 4x4 मैट्रिक्स था लेकिन 2x2 का आउटपुट है। तो वो और वो दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन पैडिंग, राइट। तो क्योंकि अगर तुमने पैडिंग ऐड कर दिया तो फिर इसका 3 पता नहीं कितना 3x3 हो जाएगा, या नहीं 4x4 हो जाएगा, कंजर्व हो जाता है। तो दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन पैडिंग। लेकिन जो कि मैंने डिफॉल्ट 0 है, तो दैट वोंट, अनलेस कि मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा, दैट वोंट चेंज। तो मतलब मैं जब तक मैं पैडिंग को वैल्यू दूंगा दैट वोंट चेंज। देन उसके बाद ये है पैडिंग ऐड करने का तरीका। इसमें पहले 0 का एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, फिर वैल्यूज प्लेस करते हैं जो इमेज का ओरिजिनल होता है स्पेसिफिकल एरियाज में। जहाँ पे सपोज तुमने बॉर्डर दिया है 2, मतलब बॉर्डर दिया तुमने इधर 0 का पूरा बॉर्डर, ऐसे इधर 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 पूरा 0 का बॉर्डर दिया सपोज। तो पहले वो एक सपोज ऐसा है कि तुमने 0 का बॉर्डर दिया ना इधर पूरा इधर, तो 2 ऐड हो गए, रोज 2 ऐड हो गए। तो शेप में उसने 2 ऐड करके एक 0 मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। np0 बेसिकली होता है एक, तुम मुझे एक मैट्रिक्स दो जिसमें कि सारे वैल्यू 0 होते हैं, और उसका शेप मैं तुमको बता दूंगा, तुम दे देना। लेकिन np numpy ऐसे numpy का ऐसा फंक्शन होता है। तो और ये जो देख रहे हो int पैडिंग, एक जगह से दूसरी जगह, एक सेकेंड, तो हाँ, तो एक जगह से दूसरे कहाँ पे, तो यू वांट कि मैंने सबसे पहले 0x0 मतलब मैंने पूरा एक ऐसे मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया 2 ऐड करके, एंड देन हर पोजीशन पे 0 डाल दिया मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये वाला जो एरिया है ना उस 0 मैट्रिक्स में, वो ओरिजिनल इमेज हो, ठीक है। ओरिजिनल इमेज के वैल्यूज हो उधर। तो ये बात आ जाती है सिंटैक्स पे। मैं खाली सिंटैक्स समझा रहा हूँ तुम लोग को। तो इसका ये तरीका होता है, तुम एक ये जो है डॉट होता है ना, डब्ल्यू जो कॉलन है, ये होता है कि इस जगह से उस जगह, मतलब वैसा कुछ होता है इसका मीनिंग। तो ये रोज के लिए हो गया यहाँ से यहाँ, और उसके लिए बोल दिया कि ये जो एरिया है दैट इज इक्वल टू इमेज, ठीक है। तो वैसे होता है। और फिर देन वी मूव थ्रू द इमेज, वी अप्लाई कन्वोल्यूशन ऑन इट, ठीक है। वी मल्टीप्लाई द कर्नल विद द जो भी अपना वो एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया जिसमें हम लोग चला रहे हैं अपने कर्नल को, एंड देन ये डॉट सम हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो ये होता है, एंड देन ये छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है तुम लोग का, बट ठीक है। हाँ, तो ये होता है कन्वोल्यूशन, ऐसे डिफाइन किया गया। और किसी को डाउट है अभी? पैडिंग में एग्जैक्टली मतलब हो क्या रहा है? पैडिंग में ऐसे होता है कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि x4 पे w4 को तुम x4 पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। तो फिर w0 w3 w6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है।
तो हम लोग अगर एक लेयर ऑफ 0 ऐड कर दें तो देन वी कैन मल्टीप्लाई, है ना? तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना? हाँ, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लेकिन नाउ यू कैन मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके अलग अलग, कुछ लोग इसको 0 नहीं रखते, कुछ लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो फिर भी या तो खराब हो जाएगा या फिर हाँ मतलब जो खराब होगा, एक्चुअली था खराब उससे होगा। तो कुछ अलग ही आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, वी तो ट्राई फिर टू फायदा रिटेन क्या हुआ सम ऑफ पैडिंग करने का? we try to retain some of the information. Also, sometimes we try to retain the shape. वही होता है. Obviously, you cannot get, मतलब वो कुछ वो डिफाइन भी नहीं है ना कि वो, ये तो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब सॉर्ट ऑफ क्लियर है, समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ मतलब वही है, मतलब एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, फिजिकली डिफाइंड ही नहीं। हम लोग शेप मेंटेन करने के लिए और हल्का सा इंफॉर्मेशन कुछ लाइक इन सब से तो मल्टीप्लाई किया ना, तो पार्शियल इंफॉर्मेशन तो है ना, तो वही है। तो ये होता है। और किसी को डाउट है? बेसिकली कर्नल हम यूज क्यों कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन और कर्नल? हाँ, वो आगे आगे जाके वो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऑपरेशंस तुम कर सकते हो। मैं भी एक लाइक, ठीक है, आगे मैं एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा फालतू सा एग्जांपल है, क्रॉपिंग वाला टाइप है। क्रॉप तो यार तुम कैसे भी कर सकते हो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वाह बहुत कमाल का चीज किया है, बट तुम हाँ, कॉन्वोल्यूशन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, वो तुम आगे देखोगे। आगे हम लोग सारा, लिटरली सारा ऑपरेशन कॉन्वोल्यूशन से करेंगे, तो उसका यूज तो है, और CNN में भी यूज होता है बहुत। तो यहाँ पे अभी ये एग्जांपल है कॉन्वोल्यूशन का, थोड़ा सा ठीक है, देख लो। तो ऐसा होता है कि, अच्छा और कोई डाउट है? एनीबॉडी एल्स हैज एनी डाउट? नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 50x50 का मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, और मैंने बोला कि जो सबसे पहला जो क्या बोलते हैं पॉइंट है, लाइक 0 0, वो 1 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको उस पे लगाऊंगा, इमेज पे, मैं सारे पॉइंट्स पे एक एक करके आगे शिफ्ट करते जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, किसी को समझ में आ रहा है? तो सपोज ऐसा है कि तुमने यहाँ पे रखा, ठीक है, और तुमने इसको 1 दे दिया और बाकी सब 0 है, तो जब तुम x5 की जगह x0 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे वैल्यू 0 है, तो इमेज हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया इमेज। ये वाला जब इधर जा ही नहीं पाओगे, मतलब x5 के नीचे जा ही नहीं पाओगे, इधर जा ही नहीं पाओगे कहीं पे, तो मतलब पैडिंग वैडिंग ये इस छोटे इमेज में मतलब खाली 2 ही चीज हो सकती है, 2 ही, लेकिन बड़ा इमेज में एसेंशियली मीनिंग ये होता है कि क्रॉप हो गया। यहाँ पे भी क्रॉप हुआ है, ये रीजन पूरा क्रॉप हो गया। तो सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ और रिजल्ट्स कंपेयर होंगे, ठीक है। हाँ, ये था ओरिजिनल इमेज, ठीक है, और इसका हल्का सा इसका बोट टाई छोटा हो गया, और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये उतना कोई बहुत कमाल चीज नहीं हुआ है, बट एक है क्या होता है कॉन्वोल्यूशन से, कैसे उसका फिजिकल इफेक्ट होता है, वो दिख रहा है। तो अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होती है, ठीक है। तो इमेज का क्या होता है ना, सॉरी, नॉइस का होता है कि यू एसेंशियली वांट टू स्मूथ इट आउट, देयर इज अ स्पेसिफिक लॉजिक टू स्मूथिंग आउट इमेजेस। और मैं ये भी, तो ऐसा है कि सपोज यू हैव अ array 1 1 1, ठीक है, and because of some reason noise add हो गया, तो now that array becomes 1 4 1, ठीक है। तो अगर तुम सेकंड पोजीशन जो है 4, उससे उसको थोड़ा स्मूथ आउट करोगे, पूरा array को थोड़ा स्मूथ आउट करोगे, तो 1 4 1 becomes, अगर मैं 4 में से एक उठा के फर्स्ट पोजीशन में डाल दूं, तो that becomes 2 3 1, है ना। और फिर से अगर मैं करूं उसको, अब इस बार मैं राइट में डाल दूं, तो that becomes 2 2 2, राइट। तो ओरिजिनल था हम लोग का एरे 1 1 1, नॉइज ऐड किया बन गया 1 4 1, उसको स्मूथ किया बन गया 2 2 2। तो 1 1 1 और 2 2 2 का प्रोफाइल इज वेरी सिमिलर, इट यू नो कि इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, फीचर्स कंजर्व हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो एसेंशियली नॉइज को स्प्रेड आउट करने का यही पर्पस होता है कि इट हेल्प्स इन, मतलब
then you can do a lot many things with it, और फीचर्स कंजर्व हो जाते हैं, वही है essentially. तो अब हम लोग देखेंगे अब क्या बोलते हैं, स्मूथ आउट करने का एक तरीका है कि तुम एवरेज ले लो, ठीक है. तो स्मूथ आउट का तुम चाहते हो कि जो भी नॉइज है, सपोज इधर थोड़ा कम नॉइज है, इधर ज्यादा नॉइज है, इधर ओके नॉइज है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ज्यादा वाला जो नॉइज होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है. और कम है तो थोड़ा इधर उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो इधर पॉजिटिव इफेक्ट होगा. तो समझ रहे हो ना, मतलब जहाँ पे ज्यादा नॉइज है वो लोअर एरिया में चला जाएगा नॉइज, जहाँ पे कम नॉइज है दैट वुड इन्फ्लुएंस द अदर एरियाज टू, उसका भी नॉइज कम हो जाएगा, तो स्मूथ आउट हो जाएगा सॉर्ट ऑफ. तो एसेंशियली मतलब यही होता है इसमें, एवरेजिंग का वही पॉइंट है, ठीक है. और कि तुमने हर जगह पे लिया और उसको सम किया, एवरेज किया और जो भी है. तो ये वाला एवरेजिंग मतलब अगर मैं 5x5 मैट्रिक्स ले रहा हूँ और 25 से डिवाइड कर दिया. 25 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सपोज एवरीथिंग इज 255 मैक्सिमम वैल्यू, और ऐड कर दोगे तो फिर उसको 25 से डिवाइड कर दोगे तो मतलब 225 into 25/25 मैक्सिमम 225 ही रहेगा. यही रीजन है 225 ऐड करने का. मतलब ठीक है, तुम 30 ऐड करोगे तो भी मतलब सॉर्ट ऑफ स्केल हो जाएगा वैल्यूज, बट हम लोग 0 to 255 में रहेंगे, ठीक है. तो और रहना भी चाहिए. तो ये है इसका, ये हटाओ, हाँ ठीक है. तो ये एवरेज है, मैंने डिफाइन कर दिया NP1 which we have derived from library, जिसमें कि NP0 था, this is NP1, बेसिकली सारे एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं. तो we divided by 25 और फिर हम लोग कॉन्वोल्यूशन करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो you flip it won't make any difference. अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है. मेरा नेट, हाँ ठीक है. सो ये था तुम्हारा ओरिजिनल नॉइज वाला, और ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, ब्लर हो गया. ब्लर हुआ लेकिन मतलब उससे पहले नॉइज कम हुआ है, इतना स्पेसिफिक नॉइज नहीं है, इट हैज स्मूथड आउट अ लॉट, ठीक है. नाउ इस पे आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, बट तुम देख रहे हो कि नॉइज कम हो रहा है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ब्लर हो रहा है इमेज, which we don't want. So surely there must be some other matrix जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें, है ना. तो वो है गॉसियन कर्नल फिल्टर, जिसका मैं पहले बात कर रहा था बहुत. तो वो गॉसियन जो होता है ना, वो उसका बेसिक आइडिया ये होता है, ये फॉर्मूला है उसका गॉसियन का जो मैं यूज करूंगा, ठीक है. तो गॉसियन का आइडिया ये होता है कि अगर तुम किसी एक पिक्सल पे उसके सराउंडिंग पिक्सल से हल्का सा इन्फ्लुएंस लेके उस पे रिप्लेस कर रहे हो, तो इट इज ओनली लॉजिकल, ओनली इंट्यूटिव. इट इज इंट्यूटिव कि तुम सबसे ज्यादा वेटेज उस पिक्सल को दो, है ना. तो ठीक है, क्लियर है. हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए तुम देखोगे ये जो कर्नल गॉसियन कर्नल मैंने उठाया है, ये 41 हाईएस्ट वैल्यू इधर, और फिर इट गोस, जैसे जैसे दूर जाते रहते हो वैसे वैसे उसका वेटेज कम होते जाता है, ठीक है. वेटेज मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस सेंट्रल से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा उस पोजीशन से. तो सेंट्रल जहाँ पे मैं जिस पिक्सल पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस पिक्सल को सबसे ज्यादा वेटेज मिले, तो इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है इसका. और ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, हाँ ये लिखा था, तो ये है इसी का मैं बोला था कि पहले यहाँ पे मैथ यूज हुआ बाय द वे. तो मैथ मैंने पहले डिफाइन किया था, ठीक है. अभी तक उतना इंटरेक्टिव नहीं है, बट ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा. तो ये यहाँ पे मैथ फंक्शन, मतलब मैथ लाइब्रेरी, सॉरी, यहाँ से उस लाइब्रेरी से मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठाया है, तो ये होता है. और कहाँ गया. कोई डाउट है किसी को? वो एवरेजिंग में जो 1 1 1 करके बता रहे थे वो वाला नहीं समझ में आया.
अच्छा, तो ऐसे होता है कि वो तुमको ये समझ में आया कि नॉइस को स्मूथ आउट करने का फायदा है? हाँ वो आ गई। ठीक है, तो 111 क्या करता है कि तुम किसी एक पिक्सल पे 111 चलाओगे तो आ, तुमको इसका भी वैल्यू आ जाएगा, मतलब इन सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा नॉर्मल, मतलब सारे बेसिकली सारे वैल्यूज एक दूसरे को ऐड हो जाएंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे बाय सम नंबर जिससे कि वो स्केल में रहे, 0 से 255 में ही रहे। उसको डिवाइड करने का यही पॉइंट है, और फिर उसको जगह पर मिड पे रख दोगे। ये करने का पॉइंट ये होता है कि सपोज तुम चाहते हो कि नॉइज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो अगर यहाँ पे एक्सटेंड पे सपोज बहुत ज्यादा नॉइज है, ठीक है, तो वो इधर थोड़ा यहाँ से नॉइज थोड़ा कम होके नहीं, मतलब आगे जाओगे तो सपोज इसका बहुत ज्यादा है बाकियों का कम है, तो एवरेज आउट करोगे तो इसका भी नॉइज थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझते हो ना, अगर तुम कुछ नंबर्स का एवरेज ले रहे हो तो मिनिमम से वो एवरेज मिनिमम से ज्यादा ही होगा और मैक्सिमम से कम ही होगा, है ना। तो नॉइज थोड़ा, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे जो भी वैल्यू था वो कम हो गया थोड़ा सा नॉइज का। आई एम नॉट सेइंग कि एवरेज करने से नॉइज कम हो जाता है, आई एम सेइंग कि एवरेज करने से नॉइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हो सकता है कि यहाँ पे एक्सटेंड का कुछ ज्यादा ही नॉइज हो और इसमें ऐड हो जाए और इसका नॉइज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो दैट इज ओके। एवरेज करने का ये पॉइंट नहीं है कि नॉइज कम हो जाए, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन पॉइंट। ठीक है, स्मूथनिंग। तो अब क्लियर हो गया क्या? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट कहाँ गया? तो ठीक है, अपना स्मूथ आउट, हाँ उसे तो बता ही दिया मैंने। गॉसियन पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये गॉसियन ये सब जो गॉसियन जो आप फॉर्मूला बता रहे हो, ये सबको पढ़ना जरूरी है, मतलब कि डिटेल में कि क्या है एग्जैक्टली या तुम लोग को अभी ना खाली इंट्रोडक्शन है, समझ लो 40% 50% इतना भी ठीक है। तब काम आएगा तो प्रोजेक्ट में भी, और प्रोजेक्ट में भी ये प्रॉबेबली ही काम आएगा। दैट डिपेंड्स कि क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो चले, कोई कोई उसकी टेंशन मत लो। मैं बस तुम लोग को एक दिखा रहा हूँ कि क्या होता है, कि तुम लोग को आइडिया हो जाए ओपन सीवी सीवी का क्या फंक्शंस होता है और कैसे नमपाई होता है, ये सब तो तुम लोग को आइडिया हो ही रहा है ना। आरजीबी होता है, स्मूथनिंग होती है, नॉइसेस होते हैं, तो ठीक है, कोई कोई जानने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को, पढ़ोगे तो खुद सीख लोगे। तो हाँ, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके मैंने गॉसियन फिल्टर बनाया। और हाँ, और ऑल्सो अनदर थिंग इज कि ये सारे जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सब ऑलरेडी बिल्ट होता है। सीवी लाइब्रेरी जो है उसमें ये सारे ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तुमको खुद से कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं करके बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर हो जाए। तो ये है, तुमने फिर मतलब ये फॉर्मूला है, मैं जा रहा हूँ एक एक करके सारे पिक्सल्स के थ्रू जा रहा हूँ, सबका पोजीशन ऐसे है, ठीक है, और स्क्वायर वर्क किया और जो भी है, तो एक तुमको आ गया ये गॉसियन फंक्शन आ गया। ठीक, ये गॉसियन कर्नल आ गया तुमको। ठीक है, तो दिस एक्चुअली आई थिंक मैचेस द विकिपीडिया पेज पे जो है, तुम लोग खोल के देखना प्रॉबेबली, या फिर इधर, हाँ इधर 0.84 डाल दोगे ना, 0.084, तो वो मैच करेगा जो विकिपीडिया पे दिया हुआ है। तो ठीक है, कंफर्म कर लेना। तो नेक्स्ट विल मूव, हाँ, तो अब हम लोग इस कर्नल को यूज करेंगे स्मूदन आउट करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो हाँ, ये रहा। अच्छा, ये क्या कर दिया मैंने, उत्तर, अरे रे अभी मत देखो, आउटपुट अभी मत देखना। हाँ ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ कि हम लोग ने नॉइस को उठाया, नॉइस वाला जिसमें ये इमेज वो था जिसमें हमने नॉइस ऐड किया था। अब हम लोग उस पर ये वाला फिल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, एक सेकेंड, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये उस पर ऐड करते हैं हम लोग। ये पहले इस पर कन्वोल्यूशन किया उस गॉसियन से, और फिर तो इट शुड स्मूदन आउट। ये तुम लोग को कंसर्न की बात नहीं है, नॉर्मलाइज वगैरह एसेंशियली वही हो रहा है कि हम लोग 0 से 255 में एडजस्ट कर रहे हैं अपने सारे वैल्यूज को।
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सेशन अब इंटरेक्टिव होना शुरू हो जाएगा हल्का सा। हाँ, तो ये देखो, ये था ओरिजिनल, ठीक है, और ये तुम्हारा एवरेज, और ये है तुम्हारा गॉसियन। तो आई गेस इसका आईज और नोज कंपेयर करके देखो, या मस्टैच कंपेयर करके देखो, सो दैट इज ये स्लाइटली ज्यादा शार्प है ना। नॉइज रिड्यूस हो रहा है लेकिन शार्पनेस इंप्रूव हुआ है, मतलब कंपेयर टू रिलेटिव टू एवरेजिंग, ठीक है। सो गॉसियन इज बेटर देन एवरेजिंग, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। और अभी तुम लोग एक दो चीज क्या ट्राई कर सकते हो, वो है कि यहाँ पे थोड़ा खेलना शुरू करो इसके साथ, नॉइस के साथ। तो मेरे को पहले ये पॉइंट आउट कर देना चाहिए था, मैं भूल गया था। तो हाँ, इधर नॉइस है ना, इसको मैं इधर नहीं करूँगा, क्योंकि चलो मैं ऐसा करता, तुम लोग अपने में कर लो, चले। एक्चुअली अपने भी मत करो, एक नया वो डिफाइन कर दो, नॉइस 2 बोल दो, ठीक है। और उसमें फिर नॉइसी, रुको यार कॉपी मार लो ना, ठीक है। इस 500 को चेंज करो, ये वेरिएंस है, ये उससे कुछ होता है वेरिएंस। अगर वेरिएंस बढ़ा दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो कर्व है वो ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, वेरिएंस कम कर दोगे तो हो जाएगा। तो सपोज मैं 1000 करना चाहता हूँ, नहीं सपोज, ठीक है, ये है 1000, तो क्या होता है उससे, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। रुको, तुम लोग अपने अपनी नोटबुक्स में कर सकते हो। तुम लोग अपना जो सेव कर लेते हैं ना ड्राइव में, तो उससे क्या होता है कि बाद में जब सेशन खत्म हो जाएगा तो तुम ये सब ट्राई कर सकते हो अपने अपने से। तो इसमें यहाँ पे 500 था लेकिन यहाँ पे 1000 है जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ज्यादा मत घुसो उसमें, बट ठीक है। इफेक्ट्स देखो कि क्या होता है। रुक जाओ, अच्छा ये तो ग्रे स्केल वाली है, चलो ठीक है कोई नहीं, रुको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता हूँ एक्चुअली, तो बेटर कंपेयर करोगे। तुम लोग भी ये सब कॉपी पेस्ट मारते रहो, आधा कोडिंग वही होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ ठीक है। अब तुम लोग देखना क्या होता है नॉइस को। ये था, ये देखो नॉइस बढ़ गया, ठीक है। और थोड़ा मतलब खेलना तो खेल सकते हो उसके साथ, चले कोई टेंशन नहीं है। मतलब ओरिजिनल इस पे मत करना चेंज, क्योंकि वो हम लोग आगे यूज करेंगे। बट सपोज मैं 10,000 कर देता हूँ, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा इससे, मैंने नहीं किया पहले। हाँ ओ भाई, ठीक है। तो देख रहे हो तुम लोग उससे, मतलब ठीक है, ये सब करो, ये सब मस्त है, यही यही इंटरेक्शन है मतलब। हाँ आगे एक और जगह था जहाँ पे तुम लोग और ये कर सकते, हाँ यहाँ पर, इसको हटाओ, हाँ यहाँ पे। तो तुम लोग को टाइम चाहिए क्या उस पे, उस, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ? कोई एक बोल दो, क्योंकि मैं चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ना है, हाँ ठीक है। तो एवरेजिंग एवरेजिंग भी देख लो, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, एवरेजिंग में ऐसा है कि अगर तुम इसको चेंज करोगे ना, सपोज मैं 7, इसको नहीं करूँगा मैं, रहने दो ऐसे जैसे है। नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, अपनी नोटबुक से भी कर सकते हो। 49 से करूँगा क्योंकि 7 वही है, ठीक है पता है। तो
image average to यार copy paste अभी हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ा और तेज होएगा तो एज डिटेक्शन आ जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, करता हूँ मैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। 7:30 तक है ना टाइम। ठीक है, जो भी अगर टाइम नहीं भी मिला तो तुम लोग देख लो, मतलब तुम लोग का नोटबुक से और तुम लोग कर लेना ट्राई। ठीक है, तो आई डोंट नो क्या होगा, लेट्स सी। सब सही है ना? हाँ ठीक है, सब सही है। और धुंधला हो गया और स्प्रेड आउट हो गया नॉइस ऑल्सो, तो ठीक है, ये इफेक्ट्स है। मैं यही एंकरेज कर रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग ये वैल्यूज धीरे आगे पीछे करके देखो। 2.6 के जगह सपोज नया वेरिएबल डिफाइन करो, 3.4 डाल दो या 1 डाल के देखो क्या होता है। मतलब एसेंशियली वही होगा कि थोड़ा और ब्लर हो जाएगा, बट फिर भी देख लो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ था? हाँ हाँ, हम लोग कंपेयर कर रहे थे उसके मुस्टाच को। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा शार्प है, थोड़ा फीचर्स बेटर इसका रिस्टोर किया हुआ, रिटेन किया हुआ है, लेकिन ये सारे मतलब नॉइस ठीक है, अच्छे से मतलब फेयरली गुड स्मूथनिंग आउट हुआ है डेफिनेटली कंपेयर टू ओरिजिनल इमेज। ठीक है, तो अब ऐसा है कि हमने ब्लर स्मूथ आउट तो कर दिया नॉइस को, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि ब्लर हो गया है, तो उसको ठीक करना इज इम्पोर्टेंट है ना। तो अब हम लोग करेंगे अनदर ऑपरेशन इज शार्पनिंग। ठीक है, तो विल सी, बेसिक आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सिंपल है, बहुत सही है, अच्छा है, आई लाइक इट। तो ऐसा है कि ठीक है, जो तुम्हारा कुछ भी कहीं कोई भी नॉट नेसेसरीली ये वाला क्या बोलते हैं इमेज, कोई भी एक इमेज उठा लो, उसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लर करो। ठीक है, और फिर उसको इनपुट में से माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, एक सॉर्ट ऑफ एक फाइनेस टाइप ऑफ, तुम्हारे पास एक इमेज है, उसको तुमने हल्का सा ब्लर किया, माइनस किया, तो एक फाइनेस, एक शार्पनेस से थोड़ा फील ले लो, तो समझ लो। ठीक, आइडिया हो रहा है। तो फिर क्या होगा कि वो जो शार्पनेस है ना, वो जो हल्का सा, वो तुम ओरिजिनल इमेज में ऐड कर दो। ठीक है, तो उससे शार्पनेस और बढ़ जाता है। तो अभी इसका मैं दिखाता हूँ। शुरू करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले हम लोग गॉसियन फिल्टर से थोड़ा ब्लर करेंगे। ये जो फर्स्ट स्टेप में ब्लरिंग है ना, ये हम लोग सबसे पहले गॉसियन फिल्टर से करेंगे। मैंने ट्राई करके देखा है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग फिर दूसरे फंक्शन में चले जाएंगे, लेकिन जो कि तुम लोग को गॉसियन फिल्टर देख चुके हो तुम लोग, तो तुम लोग को आइडिया है, इसलिए मैं वही दिखाता हूँ। तो देखो क्या होता है। हल्का सा शार्प हो गया, लाइक मैं वो वाला भी इमेज दिखाई देता हूँ, गॉसियन वाला, कंपेयर करने के लिए। नॉर्मलाइज था कि, एक सेकंड रुक जाना, नॉर्मलाइज है। ठीक है, हाँ देखो, शार्प हुआ है, हल्का सा हुआ है, राइट। थोड़ा और इधर शार्प हो गया है, और मैं अगर इसको मैं 1 कर दूं अगर, तो वो और शार्प हो जाना चाहिए मतलब। लेकिन हाँ, दैट इज शार्प डज नॉट मीन गुड, मतलब उसका भी अपना इफेक्ट होता है। तो ये तुम देख रहे हो इधर हल्का सा, पता नहीं क्या हेलो इफेक्ट कहते हैं इसको, तो वो एक इशू है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुमको गॉसियन फिल्टर के साथ, गॉसियन फिल्टर के साथ ब्लरिंग किया है। ठीक है, अब अगर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि विच आर मच बेटर, ठीक है, क्योंकि उन पे रिसर्च होता है, दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो दीज थिंग्स। तो उन्होंने एक कंप्यूटर विजन का एक अपना एक फंक्शन है मीडियन ब्लर। तो मीडियन ब्लर कैसे काम करता है, वो छोटा सा एरिया ले लेता है। ठीक है, और जैसे रुको थोड़ा सा
पे पढ़ाते हैं, हाँ नहीं रुको ठीक है कोई नहीं। तो क्या करेगा वो, सपोज इस एरिया पे मैं गॉसियन तो मीडियन ब्लर कर रहा हूँ, तो वो ये सारी जो वैल्यूज है ना उसको सॉर्ट करेगा पहले, ठीक है, सॉर्ट करेगा, फिर मीडियन उठाएगा उसमें से, मीडियन उठा के फिर इधर रख देगा। तो ये होता है, ठीक है, वाई नॉट की जगह वो मीडियन आ जाएगा। तो ये होता है मीडियन ब्लर। ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, वो सब मुझे कोई खास आइडिया नहीं, दैट इज वे टू एडवांस्ड, बट हाँ, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके बाद we'll move on to edge detection, जो कि is far more interesting, और अगर टाइम कम रहेगा तो I'll just pace through it। तो सबसे पहले मीडियन ब्लर यूज किया है, वही जो मैंने बताया था। एक और चीज होता है NLM, नॉन लोकल मीन्स। आई डोंट रिमेम्बर क्या था इसका, बट दिस इज सपोज टू बी, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिनॉइजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज डिनॉइजिंग, दिस इज नॉट, अच्छा ये थोड़ा गलत यूज कर दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये मीडियन ब्लर है, मीडियन ब्लर को ही देखो बस। तो शार्प उससे जो शार्प किया, एक्चुअली डिनॉइजिंग भी ब्लरिंग ही हुआ, तो ठीक है। तो ये दो ब्लरिंग टेक्निक्स हैं जो CV2 के अपने हैं, ठीक है, ओपन CV के। तो उनसे क्या होता है, तो ये तुमको ओरिजिनल इमेज था, ये हुआ मीडियन ब्लर को यूज करके, और ये हुआ NLM को यूज करके, ठीक है। तो this is, I think this is much better, अच्छा हाँ, this is much better than I think this is better than averaging वाला। हाँ क्लियरली इधर ये सारे इश्यूज हैं, और इधर ये इशू नहीं है कोई, लेकिन इमेज शार्प हुआ है, और ये तो कुछ और ही है, तो ठीक है। तो सब कुछ, सबका अपना अपना वो होता है, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो तुम लोग भी देख लिया कि कैसे नॉइज अगर होता है तो उसको रिमूव करते हैं, और फिर उसको इम्प्रूव करते हैं या जो करते हैं। तो यही था। मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये हम लोग का है, इसको कंपेयर करता हूँ नॉइज के साथ, रुक जाओ, तो तुम लोग फिर देख पाओगे कि क्या होता है एक्चुअल में। मतलब यू कैन कंपेयर कि हाउ द इमेज हैज एनहांस्ड। बाय इमेज आई मीन नॉइज वाला इमेज, अपने इमेज में नॉइज होगा, सोर्स इमेज में ये नॉइज था, ठीक है, और ये फाइनल हम लोग का आउटपुट है। तो चेहरे पे इसका जो भी नॉइज था वो कम हुआ है हल्का सा, ठीक है। हम लोग का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है बिकॉज दिस इज ऑल वेरी बेसिक, बट रिसर्च होता है, थिंग्स बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज होता है, तो और बहुत बेटर रिजल्ट्स आते हैं जब जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं। तो ये था तुम लोग कैसे डीनॉइजिंग करते हैं। अब आता है एज डिटेक्शन, ठीक है। दिस इज, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। तो सबसे पहले किसी को डाउट है कोई अभी तक? बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है क्या? हेलो हेलो, हाँ हाँ, how did you correct that normalized error? I am getting that error. कहाँ पे? Normalized not defined. ऊपर थोड़ा सा, हाँ इधर शार्पनिंग में था। कहाँ पे? इधर? एक मिनट, मेरे में लिख के आ रहा है नेम नॉर्मलाइज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तुमने यू हैव नॉट रन ए सेल। मैं भाई यू हैव टू रन एवरी सेल, क्योंकि फिर वेरिएबल स्टोर होते हैं। हाँ ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू, बता देता हूँ, रुक जाओ। ये वाला सेल तुमने रन नहीं किया फिर। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब डाउट? ठीक है, आई मूव ऑन। एज डिटेक्शन फाइनली। तो हाँ, एज डिटेक्शन में सबसे पहले जो बेसिक चीज होता है जिसपे सारा एज डिटेक्शन वर्क करता है, दैट इज ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स मींस डेरिवेटिव्स। अपना कॉन्सेप्ट तुम लोग जे करके आए हो, पता ही है ऑब्वियसली। ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्म, मतलब फॉर्मूला, और डेल्टा एक्स इज द स्मॉल डिफरेंस। लेकिन फॉर एन इमेज which is for a matrix which is very discrete, the smallest difference you can get is difference of 1 unit, right?
एक पिक्सल पीछे ही जा सकते हैं, यू कैन नॉट गो 0.5 पिक्सल पीछे या ऐसा कुछ. यू कैन डेफिनेटली शिफ्ट x, मतलब अगर ये होता है x को तुम चेंज कर सकते हो 0.2 से 0.1 या फिर 0.2 से 0.15, एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, बट दिस इज, यहाँ पे दिस इज डिस्क्रीट, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस. तो ये सारे डेरिवेटिव्स ऐसे डिफाइंड होते हैं. दिस इज कॉल्ड, आई थिंक दिस इज कॉल्ड, किसका, ये बैकवर्ड था शायद, ये बैकवर्ड डेरिवेटिव है, इसको कहते हैं बैकवर्ड. ये ऐसे डिफाइन होता है, ये बैकवर्ड डेरिवेटिव, ये फॉरवर्ड डेरिवेटिव और ये सेंट्रल डेरिवेटिव. ठीक है, तो सबके अपना अपना अलग अलग जगह यूज होता है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है. तो हाँ, मैं अभी टाइम होता हम लोग के पास तो मैं बोलता कि मैं, मतलब यहाँ पे मैं तुम लोग को बैकवर्ड एक एरे लिया मैंने और मैं डेरिवेटिव अप्लाई करके दिखाऊंगा तुम लोग को. अगर टाइम होता तो मैं दिखाता कि पूछता तुम लोगों से कि तुम लोग करो 2-3 वो, बट ठीक है, अभी आई जस्ट डश थ्रू मोस्ट ऑफ इट. और तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो, उसमें कोई रश की बात नहीं है. ठीक है, रुको रुको, मैंने लिखा ही नहीं है उसका कोड. चलो ठीक है, कोई नहीं, लिख देते. तो ये है हम लोग का एरे 2.263 263 563. ठीक है, और आई रन दिस मैट्रिक्स अक्रॉस दिस. ये मास्क मैं उस पर रन करूंगा. ये मास्क इज डेरिवेटिव मास्क. तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के, सपोज मैं 2.2 और 6 पे रखा इस मास्क को, तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2.2 नेगेटिव होके मतलब ऐड हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली. 6 माइनस 2.2 3.8 मिलेगा तुमको. ठीक है, तो वो डेरिवेटिव है. तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे एज अ डेरिवेटिव एक्ट करता है ये मास्क. ठीक है, तो इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं. और डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0 है ना. तो तुम लोग देखना कि ये जो सेकंड पूरा रो है और थर्ड पूरा रो है, एक्चुअली नहीं वो उसमें आएगा. ठीक है, वाई वाले में आएगा. चलो वाई वाला भी करके दिखा दूंगा, बट ठीक है, कोई नहीं, टाइम लगेगा, बट थोड़ा वेस्ट होगा टाइम. ठीक है, कोई नहीं. प्रिंट मेरे को दिखाना था, वो कांस्टेंट 0 हो जाता है. प्रिंट, आई होप तुम लोग का सेशन अच्छा चल रहा है अभी तक. कोई डाउट है तो बता दो. चले, अरे और मास्क एस, हाँ ठीक है, जो देखते हैं इससे क्या होता है. कुछ गड़बड़ किया है मैंने. इनपुट मस्ट बी, अच्छा चलो ठीक है, सॉरी. यहाँ पे तुम लोग का एरर आएगा, मैंने ठीक से सिंटैक्स नहीं ठीक है उसमें. यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स ऐड कर देना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर तुम लोग का एरर आया तो. और ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ कॉपी कर लो. और चले बाद में इसी लिंक को दोबारा खोल लेना, तो सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी. और मैं वो 3x3 वाला भी देख लूंगा, जो भी था बाई 3 करके ऐड करेंगे. तो ये था तुम्हारा ओरिजिनल एरे, और मैंने उस पर ये डेरिवेटिव इन एक्स डायरेक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव इन एक्स डायरेक्शन मैंने अप्लाई किया उस पर. तो उसका रिजल्ट्स देखो. तो -1 है ना, तो -1 -2.2 + 6, एक मिनट को उल्टा हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है. 6, अच्छा हाँ, मैंने कॉन्वोल्यूशन किया ना, सॉरी. यू हैव टू अप्लाई कोरिलेशन, बिकॉज मैं डायरेक्टली उस पर रखना चाहता हूँ. इसका ध्यान रखना, मैंने बहुत गंदा डिजाइन किया अपना डेफिनेशन, कोई नहीं. हाँ, तो 6 - 2.2 3.8, 3 - 6 is -3, 6 - 2 is 4, 3 - 6, get the idea है ना. और मैं दिखाना चाहता था कि y में किसी को कोई भी डाउट है कभी भी इंटरप्ट कर सकते हो. 1 - 1 एक्चुअली, और ये 1 हो जाएगा. ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा. हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा. ठीक है, तो ये 2x1 मैट्रिक्स है. -1 1, ये बैकवर्ड डेरिवेटिव्स है आई थिंक इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो इसका इससे 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 क्या होता है वो देखते हैं. कॉपी मारो. ये देखो,
मैं बोला था कांस्टेंट है, 0 जाना चाहिए तो हुआ 0। 636363 है, तो अगर तुम इस पे अप्लाई करोगे तो ये 0 जाएगा, विच इज मतलब लाइक नॉर्मल डेरिवेटिव भी अपना वैसे ही काम करता है। तो अच्छा मतलब डेरिवेटिव अच्छा है अपना। तो नेक्स्ट थिंग वी मूव ऑन टू इज अ फ्यू नेम्स, ठीक है। सॉबल एज डिटेक्टर, प्रूवेट एज डिटेक्टर। तो उससे पहले मैं तुम लोग को ये दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। x1 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 x1, ठीक है। तो व्हाट वी वांट इज, अगर मैं ये किसी प्रॉपर इमेज पे एक्ट करूँ ना, तो वो सॉर्ट ऑफ एज को दिखाता है। अगर जैसे एज क्यों दिखाएगा वो, क्योंकि एज इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे बहुत सडन चेंज होता है कुछ। तो जहाँ पे सडन चेंज होगा, डेरिवेटिव का वैल्यू उधर बहुत ज्यादा होगा, राइट। जहाँ पे कांस्टेंट के लिए 0 होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ पे डिफरेंस कम होगा वहाँ पे डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा, जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा वैल्यू ज्यादा होगा। तो जो वैल्यू ज्यादा होता है ना, वो मैप्स टू 0 से 255 में कुछ बढ़िया नंबर पे चला जाता है, दैट गोज टुवर्ड्स वाइट। और जो कम रहता है वो 0, मतलब वो 0 ब्लैक की तरफ रहता है। तो इसीलिए तुम देखोगे एजेस विजिबल होगा। अभी वो विजिबल होगा ओनली इन द डायरेक्शन जिसका डेरिवेटिव मैंने अप्लाई किया है। और ये सब मैं अप्लाई कर रहा हूँ शार्प मीडियन वाले पे। जो मैंने शार्प किया था अपना, वो ओरिजिनल नॉइज वाला फंक्शन, नॉइज वाला इमेज ही है पूरा, कोई नया इमेज नहीं यूज कर रहा मैं। तो मास्क x1 इज सेंट्रल, ये वाला मास्क यूज कर रहा हूँ। ये है तुमको ये वाला डेरिवेटिव, सेंट्रल डेरिवेटिव। तो इसको मैं अगर अप्लाई करूँ, कहाँ गया ये जो हम एजेस की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स के एजेस है ना? हाँ। तो लेकिन अगर कोई कलर शैडो है, किसी किसी मतलब वाइट सरफेस पे ब्लैक शैडो है, तो उसकी भी एज डिटेक्ट हो जाएगी इस चीज से? हाँ हाँ हो जाएगी। कलर चेंज, तो कलर इज बेसिकली इंटेंसिटी ना, जो 0 से 255 कोई वैल्यू होगा बीच में। तो जब तुम ब्लैक से व्हाइट पे जा रहे हो, तो 0 से 255 या फिर कोई मतलब 5 से अचानक से 5 से अचानक से 200 पे जा रहा है वैल्यू, तो उसका डिफरेंस डेरिवेटिव लोगे तो वो तो हाई वैल्यू होगा ना, तो उसका हाँ, एज नहीं, मैं विजिबल वो होगा। वो तो समझ आ गया। मैं कह रहा हूँ कि हाँ अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एज चाहिए, लेकिन हम उसकी शैडो का एज भी आ रहा है, तो वो दिक्कत नहीं होगी? हाँ वो दिक्कत होगी। अब वैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इमेजेस में कि क्या शैडो है और क्या वो है, मतलब आई गेस उसके लिए कुछ होंगे, शैडो रिमूवल, आई डोंट नो। मेरे को ये तो बहुत बेसिक है, वो थोड़ा एडवांस्ड हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्या कर रहे थे ऐसे जो, इसको छोड़ो, इग्नोर मारो, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो मैं दो मास्क यूज करूंगा, 2 डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी तो पहला जो मैं यूज करूंगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये है इसमें -101, दिस इज सेंट्रल डेरिवेटिव, ठीक है। और दूसरा जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी सेंट्रल डेरिवेटिव ही है, लेकिन दैट इज 3 रोज, राइट। तो इसका पॉइंट ये होता है कि तुमको डेरिवेटिव तो मिल ही रहा है, लेकिन बिकॉज यूर यूजिंग ऑल दीज अदर सराउंडिंग पिक्सेल्स, तो तुम्हारा इमेज भी हल्का सा स्मूदन आउट हो रहा है। उसको 3 रोज करने का यही पॉइंट होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन कर दिया है मास्क उससे, और मैंने इमेज शो कर दिया, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया इमेज के अंदर ही। तो ये है तुम्हारा जो 3 रो वाला था उससे। और तुम देखोगे बिकॉज दिस इज इन एक्स डायरेक्शन, तो यू कैन सी वर्टिकल एजेस, है ना, क्योंकि डेरिवेटिव उस डायरेक्शन में, तो यू कैन सी ऑल दीज एजेस, राइट। और दिस इज नॉट सच अ गुड रिजल्ट, विच बेसिकली गोज ऑन टू शो कि अगर तुम अपना वो मास्क चेंज करते रहोगे तो यू कैन गेट बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। तो ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए था, वर्टिकल के लिए भी आगे आएगा। तो ये है, इसको इग्नोर मारो, जो भी है थ्रेशोल्डिंग वाला फालतू का लिखा हुआ है। तो सॉबल एज डिटेक्टर सेम प्रूवेट वाला आइडिया ही है, नॉइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 वो है, लेकिन -1 की जगह ये -1 और उसके जगह 2 है इधर। 2 क्यों है? क्योंकि जो सेंट्रल पिक्सल है उसके पास है ये, एंड दिस इज स्लाइटली फार्दर,
तो वो जो कॉन्सेप्ट था पहले कि जो पास जो जो पिक्सल के पास है उसका ज्यादा वेटेज होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो सेम कॉन्सेप्ट है इधर, इसलिए इसको 2 दिया है इधर और इसको 1 दिया है। तो इसको अप्लाई करोगे तो अभी ध्यान देना, अभी अभी इंटरेस्टिंग चीज सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत तुम लोग को बाद में अपना नोटबुक में कर लेना, अपने लैपटॉप में जहाँ पे भी, बट इधर देख। हाँ, तो पहले तो इसको मैं स्पॉइल काहे करूँ। हाँ ठीक है, सबसे पहले ये मैंने डिफाइन कर दिया सॉबल, मैंने एक एरे बना दिया, मैच कर रहा है देखो 101 10 माइनस 1 2 0 1 2 माइनस 2 जो भी है ये सब, और ये x के लिए हुआ, ठीक है। gx gy 1 2 1 0 0 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। सिंटैक्स का थोड़ा इशू होता है इसमें, ठीक है, तुम लोग मेरा कोड वोड चेक मार लेना। तो और फिर मैं इस पे ये कॉन्वोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने किया उस पे, और मैं खाली जो बेस्ट हम लोग का शार्पनिंग वाला जो था उसका जो आया है उस पे कर किया मैंने। तो इसको तुम अप्लाई करोगे तो इससे ये सॉबल x जो दिखा रहा है ना, ये तुमको मेरे हिसाब से वर्टिकल एजेस देना चाहिए, और सॉबल y जो है, जो कि ऊपर से नीचे डेरिवेटिव हो रहा है, वो तुमको हॉरिजॉन्टल एजेस दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं शो करूँ तो यू गाइस वुड प्रॉब्ली इंटरेस्टिंग होगा रिजल्ट। किसी को डाउट है तो पूछ लो। आई थिंक सेशन पहले ही खत्म हो जाएगा 7:30। चलो कोई नहीं। तो ये देखो, ये ओरिजिनल इमेज है। ओरिजिनल मतलब जिस पे हम लोग एज डिटेक्शन कर रहे हैं, ये शार्पेंड है स्लाइटली। और ये है सबसे सेकंड वाला इमेज कौन सा था, एक्स जिस पे अप्लाई किया था, तो यू कैन सी वर्टिकल एजेस ऑन इट, ठीक है। और ये वाई वाला यू कैन सी हॉरिजॉन्टल एजेस ऑन इट। नाउ लाइक ठीक है, दैट इज this is interesting in itself, but what you want to do is you want to combine both of them. So how can you combine both of them, है ना। so अगर तुम लोग थोड़ा सा like you have a partial derivative in x direction, you have a partial derivative in y direction, so it's something like a vector, और वेक्टर जैसे मिलता है हम लोग उसको तब क्या करना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड देखना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, ठीक है, which is this going very fast? Anybody, किसी को कुछ पीछे का पूछना है? नहीं, ठीक है ठीक है। तो राइट, तो अब हम लोग चाहते हैं कि हर पिक्सल पे यहाँ पे ये इसके किसी भी पिक्सल पे gx वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि हमने gx से उसको वो किया है, कन्वोल्यूशन किया है। यहाँ पे gy का दिखाता है, ठीक है। तो व्हाट यू वांट इज कि इसी एक मैं नया मैट्रिक्स लूँ जहाँ पे इस पोजीशन पे gx स्क्वायर प्लस gy स्क्वायर ऐड कर दूँ और स्क्वायर रूट कर दूँ। दिस इज व्हाट यू वांट, ठीक है। यू वांट द मैग्नीट्यूड, तो दैट इज मैग्नीट्यूड। तो ये इससे होता है। तो np का स्क्वायर फंक्शन इज बेसिकली इट स्क्वायर्स सॉबल x इज ये दोनों इमेजेस, ये सॉबल x है, ये सॉबल y है। सॉबल x सॉबल y वाज सॉबल एज डिटेक्ट जो था हमने मास्क किया उस पे, ये है ये जो था हम लोग का gx gy, ये मास्क किया उस पे, और उससे जो हम लोग को रिजल्ट आया था वो सॉबल x और वो सॉबल y था रेस्पेक्टिवली फॉर x एंड y, जो कि व्हाट रेस्पेक्टिव एजेस दिखा रहे थे जिनको हम लोग को कंबाइन करना था। तो ओए स्पॉइल कर दिया, कोई नहीं। हाँ ठीक है, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये है नीचे 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 लास्ट सेल है ये। तो यहाँ पे स्क्वायर किया उसको, उसको सारे उसके एलिमेंट्स को स्क्वायर किया और ओवरऑल स्क्वायर रूट कर दिया। सारे फंक्शंस है नंपाई के करोगे तो ये नॉर्मलाइजेशन है, वो सेम चीज़ कि 0 से 255 पे रखना है उसको। और ये सॉरी ये नॉर्मलाइज नहीं है, सर कुछ और है, ठीक है, ये इसको इग्नोर मारो जो भी है। तो एसेंशियली मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, मैंने दोनों एजेस को कंबाइन कर दिए हैं। अब जो रिजल्ट आना चाहिए वो एजेस दिखाना चाहिए,
देखते क्या होता है। ये देखो गोरिल्ला टाइप लग रहा है, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन हाँ ये इसके एजेस। तो बहुत बढ़िया चीज़ है मतलब, ठीक है। और तुम लोग ये सब देख सकते हो, ये नोटबुक तो यूज़ कर ही सकते हो, आगे मैं और आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो ये था तुम सॉबल एज डिटेक्टर होता है, और इसका सॉबल एज डिटेक्टर एक इनबिल्ट फंक्शन मिलता है तुमको सीवी में, जो कि डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो तुमको ये सब मैट्रिसेस वेट्रिसेस नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली अप्लाई करो और हो जाएगा, ठीक है। इसके जैसे और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि और भी डिटेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हुआ लैप्लासियन डिटेक्टर, फिर एक होता है कैनी एज डिटेक्टर विच इज द मोस्ट फेमस वन। तो वो सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं सीवी के, जैसे कि एक चीज दिखा देता हूँ, कैनी वाला दिखा देता हूँ मैं। ये उसका रिजल्ट आएगा, ये क्या करता है, ये सॉबल वाला ही करता है, बट ठीक है ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, मेरा बेटर है बट कोई नहीं। तो इसमें इसमें क्या करता है तुम पढ़ सकते हो ये सब ऑनलाइन। तो एसेंशियली यही है, मतलब यू कैन डू अ लॉट मेनी थिंग्स विद इट। अभी क्या होगा कि जब अभी खत्म हो गया, मैं 5 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा, 2 मिनट में तो 3 मिनट में डाउट वोट लेके, फिर उसके बाद मैं एक स्लैक पे एक लिंक भेज दूंगा जिसमें कि एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे, ठीक है। वो तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम लोग को काफ़ी अच्छे से, अगर तुम लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है और तुम चाहते हो थोड़ा और डिस्कवर करना या फिर और असाइनमेंट्स करना, तो मैं एक लिंक भेज दूंगा तुमको, जिसमें कि काफ़ी कुछ जो मैंने कवर किया है इंट्रोडक्शन में वो सब है। तो तुम लोग को स्टार्टिंग वहाँ से बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो यही था, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं सेशन ख़त्म करूँगा। कैसा लगा सेशन ये बता दो, ठीक है किसी को कुछ बोलने को? सोवेल में जो 3x3 मैट्रिक्स से जो हम डेरिवेटिव ले रहे थे, वो हाँ कैसे एक्ट कर रहा है? जैसे 3x1 का समझ गया मैं, लेकिन 3x3 हाँ कैसे एक्ट कर रहा है? हाँ तुमको 1x3 बोल रहे हो ना, 1x3 तुम समझ गए थे, जो -101 था, है ना? तो हाँ हाँ तो सॉबल से पहले प्रूव पे देखते हैं कि ये 3 क्यों यूज किए, तीन रोज क्यों दिए ना। तो वो तुमको डेरिवेटिव तो मिल ही रहा है, ठीक है। जैसे तुम आगे का जो और एज है पीछे का तुम माइनस कर रहे हो, तुमको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। बट इसको 3 रोज यूज करने का ये है कि थोड़ा सा स्मूदन आउट हो रहा है इमेज, जो मैंने पहले लॉजिक दिया था वही है, थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा स्मूदन आउट हो रहा है, कि नॉइस थोड़ा कम हो रहा है, और वही है एसेंशियली। तो ये था प्रूवेट के लिए, इसमें तुमने ये सेम ही चीज 3 बार रिपीट कर दिया है, 3 रोज में डाल दी है, बट और उससे 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 इमेज कितना इंप्रूव हुआ है वो देखो, राइट। ये था तुम्हारा -101 से, और ये जो 3 तुमने वो डाल दिए थे, तो दिस इज मच बेटर, राइट। बट सॉबिल क्या करता है कि ये 2 डाल देता है। 2 क्यों डालता है इधर 1 की जगह? क्योंकि दिस इज क्लोजर टू दी पिक्सल जिस पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ जिस पिक्सल पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है, उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, राइट। तो उसके जस्ट पहले का जो है दैट इज क्लोजर टू दैट पिक्सल। तो अब क्लोजर टू द पिक्सल है, सपोज तुम शर्ट है, ठीक है, इमेज है कोई, उसमें शर्ट है, और शर्ट के पास का कलर सभी सेम ही होगा ना, है ना? क्योंकि ऐसा ही होता है इमेजेस मोस्टली, मतलब एक फेयरली कंटिन्यूस होता है कुछ देर के लिए। तो उसके पास के जितने भी वैल्यूज होंगे वो सेम कलर इंटेंसिटी सब कुछ मैच कर रहा होगा वेरी ऑफन। तो तुम उस चीज का फायदा उठाना चाहते हो, ठीक है। तो ये होता है कि इधर 2 की यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ? हाँ हाँ हो गया। ठीक है, और कुछ है किसी को? अगर 2 की जगह 3 यूज करता है तो बेटर रिजल्ट मिलता है या फिर थोड़ा और बिगड़ जाता है? आई डोंट नो, मे बी यू शुड चेक। मैंने चेक नहीं किया, मतलब मैंने जितना ओपन सीवी यूज किया है इसमें ये सब कुछ नहीं था, मैंने कुछ और ही यूज किया था, बट ठीक है। तुम लोग भी प्रोजेक्ट करोगे तो नहीं, मतलब डिपेंड्स कि क्या प्रोजेक्ट है तुम लोग का। आई डोंट नो क्या होगा, शिट मेरे को अलग से मैट्रिक्स बनाना चाहिए था, सॉरी कंपेयर करने के लिए। रुको मैं करता हूँ, टाइम है अपने पास 20 मिनट। चलो
लेट्स सी क्या होता है उससे। पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा दोबारा, एक्चुअली नहीं, मैं स्टोर कर लेता हूँ ना इसको वहीं पर। नहीं वो स्टोर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई नहीं, नया वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। इसको 2 रखो। आई थिंक इम्प्रूव करना चाहिए, बट अगर इम्प्रूव करता तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं है ना। तो मे बी लेट्स सी। जो भी है तुम लोग ये सब अपने नोटबुक पे भी कर लेना, ऐसे इसीलिए नोटबुक बनाया है मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं डायरेक्टली उसी को कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा रुको, नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। उसी को कंबाइन करके फिर देख लेंगे एक बार। ओके, आई डोंट थिंक ज़्यादा डिफरेंस है। मे बी इसीलिए नहीं करते क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, आई थिंक। फिर भी आई विल स्टिल कंबाइन बोथ ऑफ देम। लेट्स सी, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक है, तो ये तुम्हारा ये होना चाहिए नया वाला, इसके ऊपर विल पुट द ओरिजिनल वन। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, मे बी इसीलिए हम लोग नहीं यूज़ करते हैं आई गेस। ठीक है, और किसी को कुछ है? नहीं तो वाइंड अप करते हैं सेशन। ये सब जो हम अभी सीख रहे हैं, इस सब का यूज कब होगा? प्रोजेक्ट जब करोगे तो उसका ध्यान रखना तुम लोग कि तुम लोग को कहीं पे भी प्रोजेक्ट मिल जाए, नॉट नेसेसरीली ई क्लब, एनीथिंग, रोबोटिक्स क्लब, ई क्लब, काफ़ी जगह पे यूज होता है प्रोजेक्ट लेना प्रोफेसर के अंदर। प्रोजेक्ट लेना प्रोफेसर के अंदर, मेरा रिकमेंडेशन यही है। फर्स्ट ईयर का समर वेस्ट मत करना। और उसमें अगर तुम किसी जाओगे तो तुमको ये सब डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, बट हाँ तुमको ये सब यूज़ करने को मिलेगा। जैसे कॉन्वोल्यूशन है, तुमको वो CNN में यूज़ करने को मिलेगा। ये है, इसमें तुमको इमेज प्रोसेसिंग का भी कोई हो सकता है, उसमें यूज़ करने को मिलेगा। मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि हम लोग वो कर रहे थे, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। वो मैंने नहीं बताया क्योंकि वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बट ठीक है। प्रोजेक्ट्स करोगे, प्रोजेक्ट्स करना, वैसे वैसे नहीं हो पाएगा, प्रोजेक्ट्स के बिना नहीं हो पाएगा। और कुछ कैसा लगा सेशन, कोई बता दो। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। तो वो प्रोजेक्ट्स के टाइम पे ही सीख जाते हैं या पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए? थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस कर लो, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं।
प्रोजेक्ट्स में सीख लोगे, और ई क्लब के प्रोजेक्ट में अप्लाई करना, काफ़ी टीम्स होते हैं इधर। मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन ओपनसीवी में टीम ह्यूमनॉइड में हुआ था, वो दैट वाज एक रोबोटिक्स वाला टीम है, उसमें हुआ था। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेके रखो। ओके, थैंक यू। और किसी को? इट वाज अ नाइस सेशन। थैंक यू। सब कुछ नया था। हाँ, अच्छा था। ठीक है, मैंने भी सेशन के 1 घंटे पहले नोटबुक खत्म किया। ठीक है, अब मैं रखूं? ओके, आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड ये नोट